Namaste, everyone. Welcome to the session. The title of today's talk is How to Receive Divine Guidance. Our guest speaker today with us is Miss Anjali Verma. Anjali Verma is a mindful coach, spiritualist, healer, and NLP and hypnotherapist. She has been in the holistic well being space for a decade, healing and guiding people in emotional, mental, and spiritual well being. She hosts spiritual retreats and online programs via her brand Happy Love Soul. She has touched more than 5,000 lives globally, and her mission in life is to teach how to celebrate your inner universe by touching more than 10,000 lives by the year 2030. Anjali ma'am, welcome. Thank you Thank so much you. for joining us today on the Yes platform. We really look forward to this session, ma'am. Over to you. Thank you. Thank you so much, Arunima and Ramesh sir, for welcoming on this beautiful platform. And thank you for the honor. And I'm so blessed to be here. And whatever little bit tidbits that have helped my journey, that is what I'm guiding to everybody. So first, let's start with saying the prayer, and then we will go forward. So Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Devo Tasma. Om Shanti. Okay, so welcome to understand how to get divine guidance. So prior starting, let me just tell you a brief background about what I've been doing since past decade. So my journey started when somewhere or the other I kept on getting a message inside that I need healing. So I started exploring healing for myself, and when I started healing myself, somewhere or the other, I felt this knowledge is incomplete and I need to understand more. And then that is the time when I started reading scriptures. I explored Vedanta, Upanishad, and so on. And then it got me hooked into the entire Vedanta in depth. And then one led to another, and then the guidance what I kept on getting, that is how I started getting a guidance that I need how I have healed myself. I need to heal others, because it was like an adesh which I started getting the divine guidance. I'm also writing a book with the help of the same guidance. As I said, in meditation, each one of us can go and tap that divine energy, and you can get an access, a download of information, and you can apply in your life. But there are many segments where somewhere or the other we are not aligned and we don't get. So I thought, okay, let's just guide, and let us just teach each one of us how can we make it happen. How, if you need divine guidance, so what is that you can do right now? And if today I want to start my practice, so what is that I should be doing? Because many times we learn many things, but we don't apply, and ultimately everything we need to apply. So I'll be sharing a slide. Via slide, I will be guiding you forward. So the topic is how to receive divine guidance. Each one of us is receiving divine guidance in some way or the other. Some people are aware, some people are not aware. So this topic entirely is what is holding it back, why do we need it, सबसे पहले तो चाहिए क्यों हमें, how to understand कि कहाँ पे रुकावट आ रही है, और रुकावट को आप कैसे निकाल सकते हो, एंड कैसे आप फ्लो स्टेट पे आ सकते हो. So coming to, so why do we need guidance? So that is a basic question that everybody asks. Okay, कि चाहिए क्यों मुझे? तो अगर आप भगवत गीता में आप देखो, तो
first chapter itself, Arjun ji is having a breakdown. So each one of us is that Arjun who somewhere or the other, because of our stress, because of our tension, because of XYZ, we are not able to manage that perfect balance that we want. So in the first chapter itself, it says we are having a breakdown, and how can I convert my breakdown into breakthrough? Ultimately, we all want to thrive. But what is the steps? How can we go ahead and how can we apply in our life? So हमें guidance चाहिए ही क्यों in the first places? Because in our life right now, in current scenario, we ourselves have filled our life with worries, problems, doubt, stress, tension, pressure, XYZ. Everybody has, okay? Some are also manifested in somewhere on the disease में भी convert हो गई that energy blockage में, okay? So basically in our life, we have a lot of worries, problems, doubts, stress, XYZ, okay? Now we decided हम ये earth में आए, and how do we plan? We plan कि my life is for plan A, it should go in a straight line, okay? And the plan, backup plan, what we plan is, chalo, let's have a backup plan कि चलो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, that is also sorted. But in real life, how are we living is, it is all jumbled up. कभी वो बहुत गहराई में है, you're just crashing down, sometimes you're going up, sometimes you're going up and down, and that's the way the life is been going on. That means God has a different plan for you, because we are thinking we are managing our life, but trust me, we are not doing anything. It is the divine play, and in the divine play हम अपना अपना किरदार हम प्ले कर रहे हैं ये लाइफ में, ओके? नाउ कमिंग टू, हमें लाइफ में सक्सेस चाहिए, एवरीबडी वांट्स सक्सेस, राइट? सो हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट, वी थिंक, वी एनालाइज, हम प्लान करते हैं, देन वी ट्राई, देन वी डू इट, देन वी डू इट अगेन. ये सक्सेस का फॉर्मूला है. मतलब anything that you want to do, that means anything that you want to succeed, you want to start at some point. जब आप स्टार्ट करोगे, आप सोचोगे कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए. जब आप समझ लो कि क्या क्या चीजें चाहिए, आप एनालाइज करोगे, प्लान करोगे कि मैं कैसे करूंगी, मैं अपना स्केड्यूल देखूंगी, टाइम देखूंगी, एंड देन आई विल कीप ऑन डूइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. And when you do it again and again, that is when the success is going to come. तो हम अपने practices में, अपने life के practice में, we start many things, okay? But somewhere or the other, we stop. And when we stop, we are limiting ourselves, because the secret lies in perseverance. कोई भी any वर्ल्ड का कोई भी सक्सेसफुल पर्सन, इफ यू विल सी his history, he was persistent on the craft that he was doing. So चाहे वो साधना क्यों ना हो जाए, चाहे वो आपका आर्ट फॉर्म क्यों ना हो जाए, चाहे anything that you want to get success, that means perseverance is the key. वो चाबी है. अगर उसको आपने कहीं ना कहीं बीच में छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं वो जो, so basically it's like एक पौधा है, एक प्लांट है, आपने सीड डाला, और सीड में आपने अच्छा एनवायरनमेंट रखा, सनलाइट मिल रही है, उसको खाद मिल रहा है, पानी मिल रहा है, और वो ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है. जब आप उसको नर्चर करते जाओगे तो वो ग्रो होगा. मगर हम कई बार क्या करते हैं, सीड डालते हैं, स्टार्ट करते हैं, और फिर बाद में हम कंटाल जाते हैं, और हम बोलते हैं बहुत हो गया, अभी मेरे से और नहीं हो रहा. So that is where is a correction that we need. Okay. So same, every second we are, हम उस सीड को हम इम्प्लांट कर रहे हैं. मतलब एवरी सीड, अभी हर सीड, मतलब हम पूरे दिन बीज बो रहे, बहुत सारे बीज बो रहे. अब वो बीज कौन से? हमारे थॉट के बीज, हमारे शब्द के बीज, हमारे एक्शन के बीज. तो अगर हम जाने अनजाने जैसे भी बाय मिस्टेक अगर हम कुछ बोल देते जो कि गलत होता है, तो समवेयर और द अदर वी आर नॉट इन अलाइनमेंट. मतलब बेसिकली ऐसे समझ लो कि
जब हमारे शब्द प्योर निकलते, हमारे थॉट प्योर होते और हमारे कर्म प्योर होते, सो इट्स लाइक द प्योरेस्ट फॉर्म। ओके, मगर अगर इसमें कहीं ना कहीं डिसअलाइनमेंट है, तो ऐसे समझ लो जैसे हमारे लैपटॉप में वायरस आ गया है, तो वायरस की वजह से कहीं ना कुछ रॉन्ग प्लस या माइनस होता जा रहा है। ओके, सो लाइफ एज ए सेड, प्रॉब्लम से, जैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आने ही वाली, इनएविटेबल है। ओके, सो जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हमें अर्जुन के जैसे हमें अपनी दिव्य रोशनी के साथ जुड़ना है, और हमें अपनी कृष्णा जी का हमने हाथ पकड़ना है, और हमने बोलना है कि ठीक है, मेरी लाइफ इज ग्रोइंग, एवरी क्षण आई एम ग्रोइंग, आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग, आई एम ग्रोइंग। मगर अगर कभी डिजास्टर हो गया, कुछ गलत हो गया, तो वहां पे मुझे एक सीखने की अपॉर्चुनिटी मिली, और उससे मैंने सीख ली है, और वो लर्निंग मैं अपने लाइफ पे अप्लाई करने वाली। सो इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न एंड ग्रो, सो दैट यू रीडिफाइन योरसेल्फ। क्योंकि हमें लाइफ में वो सेम स्थिर में नहीं रहना है, हमें अब आगे बढ़ना है। So when we have to move forward, obviously we have to learn from the mistake. मगर जब प्रॉब्लम आते हैं तो we don't understand, and we are in that चक्कर view, and we are again in that zone only. So that is the time when what you need to do is you need to realign yourself. Realign करना है, अपना perspective देखना है, that what is this problem trying to teach me. सो ये एवरीडे होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया, सो देन यू नीड टू आस्क व्हाट इज द सिचुएशन ट्राइंग टू टेल मी। तो जब आप उसको से लर्न करने की कोशिश करोगे, यू विल नॉट रिएक्ट, बट यू विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। ओके, सो एज आई सेड, प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम में ही सोल्यूशन है। सो कई बार हमें प्रॉब्लम को स्पेस देना है। जब आप स्पेस दोगे तो ही ग्रो करेगा। same wise in nature, when a plant, when a seed you sow, it will grow a nice beautiful tree when there is space around. So we are saying we also need space, and if we don't have space, we will not grow. So ultimately, what we have to do is we have to align our mind, body and soul. Okay, but currently, in current status, when we have stress, we have tension, we have pressure, तो हमारा mind कुछ और सोच रहा है, we are feeling something else, and we are doing, ultimately doing something else. So somewhere or the other, we are not in alignment. Okay, so पूरा क्या है, मन की रचित कहानियां चल रही है। Okay, so कुरुक्षेत्र कहाँ चल रहा था, यहाँ पे, इधर। तो अर्जुन जी की जो कुरुक्षेत्र चल रहा था वो इधर। तो एवरी सेकेंड कुरुक्षेत्र इज ऑन इन एवरी ह्यूमन लाइफ। सो कबीर जी दोहा बोलते हैं कि चलती चक्की देख कर कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। मतलब वो चक्की कांस्टेंट चल रही है, कांस्टेंट चल रही है, कांस्टेंट चल रही है, और उसके बीच में जो भी आप सोच रहे हो, एवरीथिंग इज इट्स नॉट, कुछ भी बच नहीं पा रहा है। सो नाउ द पॉइंट इज, देर इज नो शॉर्टकट टू टू अलाइन विद डिवाइन एनर्जी, है ना। रास्ता हमें ढूंढना है, रास्ता हमें फॉलो भी करना है, बट easiest वे क्या है, दैट इज व्हाट आई विल बी टॉकिंग अबाउट। ओके, सो देर इज नो शॉर्टकट विद गॉड। हेल्प गॉड टू फाइंड यू। हम उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे। द डिवाइन एनर्जी इज फ्लोइंग, इट्स फ्लोइंग ईच एंड एवरीवेयर इन एवरीबडीज इनसाइड। ओके, बट we are not letting that divine energy give us that signal. Why? Because we are choosing to be here, और हम इधर रह के वो ही कुरुक्षेत्र में हम उसी में अटके हुए हैं। मतलब वो यहाँ से डिशुम हो रहा है, यहाँ से डिशुम हो रहा है, और हम उसके बीच में ही हम अटके हुए। तो हम सबके जीवन में हो रहे हो, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। ओके, तो देर आर 7 ऑब्स्टिकल्स विच स्टॉप्स यू टू रिसीविंग योर डिवाइन ग्रेस। ओके, ये चाहिए तो आप लिख भी सकते हो,
या ये वैसे भी ये रिकॉर्डेड है, तो आप बाद में भी मतलब अगर आपको वापस से याद देखना है कि क्या ऑब्स्टिकल्स है, तो आप वैसे रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ओके, तो 7 ऑब्स्टिकल्स जो डिवाइन ग्रेस को रिसीव करने के लिए रोकता है। पॉइंट नंबर 1 इज नॉट बीइंग प्रेजेंट एट द राइट प्लेस। मतलब कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारी डिवाइन एनर्जी आपके पास आ रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको सजेशन मिल रहा है, मगर हम अवेयरनेस से नहीं काम कर रहे, मतलब चेतना से काम नहीं कर रहे। जब हम चेतना से काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम हमारी इर्द गिर्द अगर वो हेल्प आ भी रही है, तो हम रिसीव मोड में नहीं है। जब हम रिसीविंग मोड में नहीं है, तो वो डिवाइन ग्रेस को आप एक्सेप्ट करके फ्लो कैसे कराओगे? सो नॉट बीइंग प्रेजेंट एट द राइट प्लेस, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज नॉट प्रेजेंट एट द राइट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट चल रहा है, ओके, टाइम था उसका 11 o'clock, मगर आप पहुंचते हो 4 बजे। तो अगर आप सही समय में यू आर नॉट बीइंग प्रेजेंट, तो वो डिवाइन ग्रेस, मतलब अभी जैसे हम बोलते हैं हमारी प्रैक्टिसेस जब हमें करनी चाहिए, तो हमें अर्ली मॉर्निंग या रात को करके फिर हमें सोना चाहिए। तो वो वाला आइडियल टाइम होता है। अगर वो टाइम पे आप नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए वो ऑब्स्टिकल खुद ही क्रिएट कर रहे हो। Now point number 3, okay, lack of time। lack of time is मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मुझे मैं तो इतनी बिजी हूँ, मुझे अभी इधर जाना है, मुझे उधर जाना है। और पूरे दिन भर हम क्या कर रहे हैं? हम बैठ के रील देख रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। तो हमें अब टाइम निकालना है, ताकि यू कैन कनेक्ट टू योर डिवाइन फ्रीक्वेंसी। तो सोर्स इज गिविंग इन अबंडेंस, मगर हम वो टाइम नहीं दे पा रहे। ओके, सो दैट इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड टू रिसीव गाइडेंस। मतलब कि हमारी अगर लाइफस्टाइल जो है, हम अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम ज्यादा तामसिक खाते हैं, हमारे एनवायरमेंट ऐसा है कि हम हमारे हमेशा नेगेटिव थिंकिंग पे सोच रहे हैं, हमारे में फेथ ही नहीं है, और हमें लग रहा है नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल मैम, हाउ कैन इट हैपन टू मी। तो मतलब जब आप रेडी ही नहीं हो, तो जब आप बोलते हैं तो स्टूडेंट रेडी है तो गुरु तभी अपीयर होता है। तो आप रेडी ही नहीं हो, तो वो गाइडेंस आ भी रही है तो आप नहीं आप रिसीव करोगे। ओके, तो नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 5। ओके, पॉइंट नंबर 5 इज नॉट आस्किंग। हम मांगते ही नहीं है, हम पूछते ही नहीं है। अर्जुन जी ने क्या किया? उन्होंने भगवान कृष्ण जी को पकड़ लिया, उन्होंने बोला कि मैं आपको सरेंडर करता हूँ, आप ही मुझे रास्ता बता। तो वी आर नॉट आस्किंग ओनली, हम जब मांग ही नहीं रहे, तो हमारा माइंड सेट जो है वो क्लोज्ड है। बिकॉज माइंड सेट अगर क्लोज्ड है, तो अगर आपके सामने गाइडेंस आएगी भी, तो आप रिसीव भी नहीं करोगे, बिकॉज आपका माइंड सेट ही क्लोज्ड है। नाउ पॉइंट नंबर 6 इज कॉन्ट्रडिक्टिंग थॉट्स। मतलब मैं करना तो ये चाहती हूँ, मगर शायद ये भी कर सकती हूँ, शायद मैं वो भी कर सकती हूँ, नहीं अच्छा ठीक है, इट्स ओके, नहीं मुझे ये नहीं करना है, अच्छा शायद मैं कर लेती हूँ, नहीं ठीक है बाद में करूँ। सो कॉन्ट्रडिक्टिंग थॉट्स। आप करना एक चीज चाहते हो, अंदर से आपको आवाज आती है, मगर देन यू से नहीं नहीं अच्छा अभी नहीं, बाद में देखूंगी। तो कॉन्ट्रडिक्टिंग थॉट्स, आपकी एनर्जी, आप खुद ही दो डिफरेंट डायरेक्शन में भगा रहे हो। मतलब आपको एक ही जगह फ्लो करना है, मगर हम एक जगह फ्लो नहीं कर रहे, हम उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं पूरा। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 7 इज द इजिएस्ट, कि हमारा ईगो। जब हम सोचते हैं कि एवरीथिंग इज व्हाट आई एम डूइंग एंड ये मेरी लाइफ में मैनेज कर रही हूँ, सो हम खुद ही अपने ईगो में, अहंकार में हम इतने, हम जब सरेंडर भाव ही नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली हमने डिवाइन ग्रेस को रोका हुआ है। ओके, नाउ नाउ वील गो टुवर्ड्स हमारा अंडरस्टैंडिंग 7 तरीका हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ इन रिसीविंग। ओके, तो अच्छा इससे पहले लेट मी टेल यू कि 7 ऑब्स्टिकल्स जो है, जो हम रिसीव नहीं कर पा रहे, उसको आप कैसे उसके सॉल्यूशंस क्या है? तो नॉट बीइंग प्रेजेंट, अगर इन द राइट प्लेस, व्हाट यू कैन डू इज
एनी टाइम दैट यू वांट टू बी प्रेजेंट, आप अच्छी गहरी श्वास ले सकते हो, अपने आप को बैलेंस कर सकते हो, एंड देन यू कैन चैंट ओम, एंड यू कैन जस्ट फील कि मैं अपने हार्ट से पूरी तरह से अपने डिवाइन एनर्जी को मैं सरेंडर कर दूं. सो दैट इज अ सोल्यूशन फॉर पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, नॉट बी प्रेजेंट इन द राइट टाइम. यू हैव टू सेलेक्ट कौन सा टाइम आप कौन सा प्रैक्टिस करने वाले हो. मतलब दैट शेड्यूल इज व्हाट यू हैव टू प्लान, बिकॉज वो कोई और आपके लिए नहीं बनाने वाला, वो आपको अपने लिए ही बनाना पड़ेगा. लैक ऑफ टाइम. ओके, नाउ लैक ऑफ टाइम के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर स्केड्यूल कि मैं कौन सा काम क्या टाइम पे कर सकती हूँ, सो दैट आई हैव दिस स्लॉट, ये टाइम है और ये टाइम पे मैं आराम से बैठ के कर सकती हूँ. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4, नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड टू रिसीव गाइडेंस. उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप हमें अपनी इम्प्योरिटीज को क्लीन करना है. जैसे हम रोज जब नहाते हैं तो हम स्क्रब करते हैं, वैसे ही हमें अपने माइंड को भी क्लीन करना है, अपने इमोशंस को क्लीन करना है, अपने पांचों कोशास को क्लीन करना है. तो वो आई विल कम आगे. ओके, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जो यू कैन डू इट एनी टाइम. विजुअलाइज आप एक डिवाइन वाटरफॉल के अंदर बैठे हो, और ये वाटरफॉल जो है पूरा डिवाइन ग्रेस है, और ये पूरा डिवाइन ग्रेस आपके ऊपर आता हुआ पूरी तरह ब्लेसिंग आ रही है, आपके माइंड में, आपकी बॉडी में, आपकी सोल में. खाली विजुअलाइज करना है पूरी पांच कोशास, सारे 7 चक्रस, खाली ये विजुअलाइज करना है. ये डिवाइन वाटरफॉल के आप नीचे बैठे हो, और ये सारा God, all God from the universe is blessing you, and you're receiving their grace and you're giving gratitude. तो ये बहुत सिंपल सोल्यूशन है. यू कैन जस्ट स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे और टुमारो whenever suits you. Okay. सो नॉट आस्किंग मतलब क्लोज्ड माइंडसेट, उसके लिए आपको ओपन माइंडसेट रखना पड़ेगा, सो दैट व्हेन यू ओपन देन ग्रेस विल फ्लो. ओके, कॉन्ट्रडिक्टिंग थॉट्स, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डू जर्नलिंग. तो जब आप जर्नलिंग करोगे तो व्हाट विल हैपन इज आपके जो थॉट्स अभी फिलहाल इतने सारे जम्बल्ड अप है, जब आप जर्नलिंग करोगे आपकी एनर्जी आपके हाथ से निकलते हुए जर्नल में जाएगी. एग्जैक्टली यू नीड टू राइट वॉट यू वॉन्ट. शुरू में तो जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, सब लिखो, सब लिखो, खाली करो पूरा. और फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेज में स्टार्ट राइटिंग व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. वांट को प्रेजेंट टेंस में लिखना चालू करो, सो देन यू विल ऑटोमेटिकली फ्लो में आप आ जाओगे. एंड डू ट्रस्ट मी, जर्नलिंग डज वंडर्स. अगर आप करना चालू करोगे, इट डज अमेजिंग. आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी, प्लस जो हैवीनेस रखा है वो पूरा खाली होगा. ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेइंग 7 ways टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर रिसीविंग. क्योंकि हमें रिसीव भी करना है, तो हम कैसे रिसीव कर सकते हैं. ओके, तो पहले तो है अपना माइंडसेट हमें ओपन रखना है. ओपन मीन्स हमें सबसे पहले तो सरेंडर करना है. जब आप सरेंडर करोगे तभी ही वो पूरी तरह से, एक छोटा बच्चा होता है ना, एक छोटा बच्चा कैसे होता है, बिल्कुल इनोसेंट होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है. वो कभी भी किसी के पास भी जाता है, आप देखो सब उसको प्यार से देते हैं. तो हमें अपने आप को ये समय में अपने आप को एक छोटे बच्चे के जैसे बन जाना है, और वो छोटे बच्चे के जैसे अपने दिव्य रोशनी से बात करनी है कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, आई सरेंडर टू यू, आप ही मुझे रास्ता बता. सो उससे क्या है, आपका एटलीस्ट क्लोज्ड माइंडसेट जो है वो आपका ओपन अप हो रहा है, और आप रिसीविंग मोड में आ गए हो. Now, point number 2 is clean the windshield of your life. मतलब हमारे कई सारे फॉगी परसेप्शंस होते हैं. तो मतलब इतने सारे कंडीशनिंग, इतने सारे पैटर्न्स, इतने सारे माइंडसेट जो हमने अपने माइंड में बिठाया हुआ है, तो हमें उसको क्लीन करना है, साफ करना है. सो जब साफ कैसे करोगे, एक ब्लैंक पेपर होता है ना, बिल्कुल पेपर बिल्कुल ब्लैंक होता है, राइट.
तो उसको ब्लैंक कैसे करोगे? जब आप रेगुलरली चैंटिंग करोगे, रेगुलरली मेडिटेशन करोगे, रेगुलरली आप जर्नलिंग करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में इतने सारे जो थॉट्स है वो खाली होंगे। और खाली होते हुए रोज चैंटिंग करते हुए वो एक लाइन में, तो अभी सोचो, इन द डे हम 60,000 थॉट सोचते हैं, तो 60,000 को डिलीट करना इज नॉट इजी। मगर 60,000 थॉट्स में से एक मंत्र में टू गो इट टू वन इज इजी। तो जब आप वन को करते जाओगे, रेगुलरली रेगुलरली करोगे, आप ऑटोमेटिकली साइलेंस में जाओ। बट राइट नाउ, कैन यू गो टू साइलेंस जस्ट राइट नाउ? नो, इट्स गोइंग टू टेक टाइम। सो दैट विल हैपन विद द प्रैक्टिस। ओके, सो बेसिकली पॉइंट नंबर 2 इज अपनी विंडशील्ड जो है, अपनी थर्ड आई की, वो पूरी तरह हमें साफ करना है, क्लीन करना है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3 इज आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हो, या अवेयरनेस अपना डेवलप करा सकते हो, या कुछ ऐसे पॉडकास्ट देखो जहाँ पे प्योर अवेयरनेस, ट्रुथ, सत्य की बातें हो रही है, जहाँ पे आप अपनी दिव्य रोशनी से और डीप आप कनेक्ट हो सकते हो। पॉइंट नंबर 4 इज कीप द कंपनी ऑफ द गुरु या ट्रुथ या डिस्कोर्सेस या भजन। जब आप वो करोगे तो ऑटोमेटिकली और डीप आप कनेक्ट होते जाओगे। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 5 इज डेवलप योर अवेयरनेस। जब आप हर चीज एक अपनी चैतन्य शक्ति से, अवेयरनेस से देखोगे, जब आप क्या खा रहे हो, क्या आप पी रहे हो, क्या आप बोल रहे हो, क्या आपके आंखें देख रही है, जब उतनी अवेयरनेस से आप चीजें देखोगे, मतलब चैतन्य शक्ति के भी पीछे, अपनी चैतन्य शक्ति पीछे रख के और वैसी दृष्टिकोण से देखोगे, तो ऑटोमेटिकली उधर आप सेल्फ करेक्ट कर पाओ। इट्स लाइक जैसे एवरी अप्रैल जब आता है, तो हम अपने फाइनेंसेस का हम देखते हैं कितना अर्न किया हमने, टैक्स भरना है, एनालिसिस करते हैं, राइट? सिंक वाइज हमारे, हम क्या बोल रहे हैं उसको आप ऑडिट करो। क्या देख रहे हो उसको ऑडिट करो, क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो ऑडिट करो। सो जैसे हम रोज अपने कपड़े सेलेक्ट करते हैं हमें क्या पहनना है, सिंक वाइज क्या ग्रहण कर रहे हो, क्या आप इनटेक ले रहे हो, क्या ये 5 इंद्रियों से व्हाट इंफॉर्मेशन इज कमिंग इनसाइड, तो उतना करेक्शन उसमें करना। ओके, देन कमिंग टू पॉइंट नंबर 6, तो टेक गाइडेंस फॉर एवरी मिस्टेक। हर एक मिस्टेक में ना आपको उसमें ये देखना है कि मैंने क्या लर्न किया, क्या मैं अपग्रेड हुई, क्या मैं कल से आज में लेवल में मैं पहले से बेटर हुई, क्या मैं एंड की स्पीड में मैं आगे बढ़ रही हूँ या मैं पीछे जा रही हूँ। तो जब आप ये करोगे रोज, एवरी डे नाइट, आप मेंटल कोमिंग जिसको बोलते हैं, आप रोज अपने थॉट्स को, अपने पूरे दिन की एक्टिविटी को एनालाइज करो कि क्या मैंने इसमें कुछ सीखा, क्या मैंने अपग्रेड किया, क्या मैं इसमें जो काम नहीं कर रहा है, क्या मैं रीअलाइन कर सकती हूँ, क्या मैं री स्ट्रेटेजाइज कर सकती हूँ, और फिर मैं क्या चीज को अप्लाई कर सकती हूँ कि मैं कल से अ, आगे चल के मैं और 001 पहले से बेटर हूँ। ओके, देन पॉइंट नंबर 7 इज लुक एट द पास्ट टू रिसीव गाइडेंस फॉर द फ्यूचर। मतलब पास्ट को पहले तो हमें देखना ही नहीं है, बट पास्ट को भी अगर आप देखोगे भी, तो पास्ट से हमें गाइडेंस लेते हुए आगे बढ़े। मतलब उसको एनालाइज करो, कंटेम्पलेट करो, जो चीजें काम नहीं कर रही थी उसको डिलीट करो, डिलीट डिलीट डिलीट, एंड देन आगे जाके हमें और ग्रो करना है और आगे बढ़ना है। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमें और डिवाइन गाइडेंस कैसे करना है। तो कनेक्ट डीपर फॉर गॉड्स फोकस। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग कि हमें बेसिकली करना क्या है। ओके, सबसे पॉइंट नंबर 1 इज कि हमें बिलीव करना है। अगर आप अपनी दिव्य रोशनी पे बिलीव करते हो,
दैट कैन बी एनी गॉड, किसी के लिए भगवान कृष्णा जी होंगे, किसी के लिए शिव होंगे, किसी के लिए माँ पार्वती होंगे, कोई भी गॉड, सब दिव्य रोशनी एक ही है। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स। तो नंबर वन इज यू नीड टू बिलीव। इफ यू डोंट बिलीव देन नथिंग इज गोइंग टू हैपन, मतलब वो फिर आपके लिए काम ही नहीं करेगा। दैट इज योर बिलीफ, ओके। देन यू नीड टू हैव फेथ। अगर आपका फेथ है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। आपने ये तो सुना ही होगा, बट फेथ माउंटेन्स मूव तब करेगा जब आपका बिलीफ होगा। बिलीव नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ओके। सो देन गोइंग टू, यू हैव टू ओपन योर हार्ट टू गॉड। अगर आप अपना हार्ट ओपन नहीं करते हो, तो आप कितनी भी लर्निंग कर लो, कितना भी ज्ञान ले लो, कितना भी अंडरस्टैंडिंग कर लो, जब तक भक्ति नहीं आई, जब तक भक्ति में ही शक्ति है, भक्ति नहीं आई तो कुछ भी नहीं हो सकता। सो दैट इज वाई ये तीन तीन चीज तो सबसे मेजर मेजर चीज है, ओके। नो, इसके बाद में जो हम, हाउ डू वी अगेन मेक इट हैपन, तो व्हाट आर द 7 स्टेप्स जिसके वाया वी कैन रिसीव, ओके। सो नंबर वन, ओके, नंबर वन इज फॉर्म अ रिलेशन, ओके। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके घर पे आती हूँ, ओके, और मैं घंटी बेल बजाते हुए आपके घर पे आती हूँ, देन आई से ओके लेट मी यू नो, and I start talking with you non-stop. And even when I know it's this person, why is she even talking to me so much? So till the time you don't form a relation, your relation means you have to dissolve your ego, because we are thinking we are managing life and we are operating out of body consciousness or mind consciousness, but we are beyond this. We are Satchit Anand. मगर वो सच्चित आनंद की स्टेट में जाने के लिए फिलहाल हम सेपरेटनेस फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले है यू हैव टू फॉर्म अ रिलेशन। तो डू यू, तो कौन सी फॉर्म ऑफ भक्ति है? डू यू, आई यू समबडी हु इज लाइक मीरा, जो उनके प्रेम में इतने प्यार में, मतलब बिल्कुल वो वाला स्टेट, या आप उनको सखा के रूप में देखते हो, जैसे अर्जुन जी ने उनको सखा के फॉर्म में देखा? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन सा वाला आप रिलेशन आप बनाना चाह रहे हो उनके साथ, है ना। तो अभी जो गाइडेंस आपके पास, हम सबके पास आ रही, मगर कहाँ से आ रही? फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली इट इज कमिंग? it is coming from teen dwar, okay. Now you have to analyze which dwar is yours, okay. So number one is हमें आईज से मैसेज मिलती है, आईज से गाइडेंस मिलता है। आईज से मैसेज मतलब कैसे? मतलब यू माइट सी सम नंबर्स, यू मे सी सम बटरफ्लाईज, यू मे सी सम फेदर्स, यू मे सी कोई बुक होगा कहीं पे आप पढ़ रहे हो, और बुक में रैंडम सेंटेंस आएगा और आपको लगेगा अरे ये मैसेज तो मेरे लिए है। आप चल के जा रहे हो, आपने कोई होर्डिंग में कुछ देखा मैसेज, तो आपको कहीं पे कुछ लिखा हुआ दिखा और आपको लगा अरे ये मैसेज तो मेरे लिए। मतलब आपके मन में कुछ चल रहा है और अचानक से कोई सामने आके कुछ बोल देता है। तो क्या आपको मैसेज आई से मिल रहे हैं? नंबर वन। नंबर टू, क्या आर यू मिस्टर आई? ओके। पॉइंट नंबर टू इज कि क्या आपको मैसेज कान से आ रहे? कई बार कई सारे जन दे हियर समथिंग, उनको अंदर से उनको कुछ सुनाई देता है और उधर से उनको मैसेजेस मिलते हैं। तो क्या आपको मैसेजेस ईयर से मिल रहे? नंबर टू। और नंबर थ्री इज क्या आपको अंदर से फील होता है? आपको अंदर से गट फीलिंग आती है और आपको लगता है कि नहीं कुछ तो है, मुझे कुछ तो लग रहा है कि कुछ तो है। तो ये इनर गाइडेंस जो है ये हम सबके पास है, मगर हम जब अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हैं, तो बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर वी हैव बीन टोल्ड कि अरे ये कुछ नहीं होता, बट ये एक्चुअली होता है। व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग योर गट इंस्टिंक्ट्स, वो और डेवलप होगा, वो और आपको चीजें बताएगा। तो गट इज आपका इतना इंटेलिजेंस होती है, वो आपके 5 सेंसेस के बियॉन्ड वो फील करके आपको बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं गए, यू मेट somebody and you're meeting them for the first time,
एंड देन यू फील ओ आई एम नॉट फीलिंग गुड, लाइक आई, मतलब मेरे को वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, तो आपने उनसे बात नहीं करी, कुछ करा नहीं, बट हाउ आर यू फीलिंग दैट? यू आर फीलिंग बिकॉज योर गट is telling you that that person's energy is not in tune with your energy, and that is why it is giving you a signal. मगर हम वो signal catch नहीं कर रहे because nobody has taught us, right, how to develop. तो NLP में बोलते हैं there is more than 52 such psychic capability on every human being. पहले ancient time में वो develop किया जाता था, बट आज के तारीख में वो साधना से कुछ कुछ डिफॉल्ट किसी के की कोई एक्सेस कर लेता है. ओके, सो क्रक्स ऑफ स्टोरी इज, आपको क्या इनर फीलिंग से आपको इंट्यूशंस ज्यादा आ रहे हैं, या आपको आई से मैसेज मिल रहा है, या आपको आपके कान से आपको सुनाई दे रहा है और कुछ उससे आपको, तो कौन सी द्वार से आपका एक डोमिनेटिंग होगा. ओके, ग्रेजुअली जब आप अपना प्रैक्टिस और करोगे तो आप देखोगे आपको ये तीनों द्वार से मैसेज मिले. दैट विल हैपन विद ओवर द टाइम, विद प्रैक्टिस. ओके, सो नंबर वन एज आई सेड कि इज यू नीड टू ओपन योर हार्ट. जब आप अपना हार्ट ओपन करोगे, फेथ रखोगे, बिलीव रखोगे, देन ऑटोमेटिकली दैट डिवाइन ग्रेस विल फ्लो. ओके, दैट वाज पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू इज स्माइल. बच्चा स्माइल. The divine says, I have given you this beautiful world where I have given you trees, I have given you fruits, I've given you vegetable, I have given you this entire beautiful cosmos जहाँ पे 9 planets है, जिसकी एनर्जी आपके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स में वो वर्क करती है. सन की एनर्जी जिसकी वजह से हम एक्शन कर पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. मून की एनर्जी कंट्रोलिंग ऑल अवर इमोशंस. इतनी सारी चीजें आपके लाइफ में, तो फैमिली इतनी ब्यूटीफुल, इतनी ब्लेसिंग्स, और इतना सारा देने के बाद भी अगर हम मुंह लटका के बैठे हैं, तो डिवाइन इज गोइंग टू थिंक कि भाई मैंने तो आई हैव गिवन दिस पर्सन सो मच, but then even this person is just crying. So when you're not happy in the things that you have, you cannot receive the guidance because your current status is a mismatch to the divine guidance to flow. तो आप अगर करंट स्टेट में हैप्पी हो, तो ही वो दिव्य रोशनी आपके अंदर फ्लो होगी इन अबंडेंस. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3 इज बी थैंकफुल. अगर आप थैंकफुल छोटी छोटी चीज, तो ना इमेजिन हर सेकंड, हर क्षण, हर पल आप श्वास ले रहे हो, और ये दिस इज लाइक ए लिमिटलेस ऑक्सीजन दैट हम वो दिव्य रोशनी हम ले रहे. तो इट इज नॉट ओनली प्राण, बट प्राण के साथ में लाइफ गिविंग फोर्स, एंड वी आर टेकिंग इन इनहेलिंग. एंड इफ वी आर नॉट थैंकफुल फॉर एवरी ब्रेथ, then I don't know what can we be thankful for. So there is so many things that is happening. So point number 3 is be thankful. तो जब आप थैंकफुल होगे, देन यू विल सी द ब्यूटी इन लाइफ. देन बी ग्रेटफुल. ग्रेटफुल, आप जब ग्रेटफुल होगे, ग्रेटिट्यूड होगा हर एक छोटी सी छोटी चीजों में. अगेन, what are you doing is you're opening your heart. Okay, now going to point number 5, which is a most important thing. Persistent. बच्चा persistent. Because majoritively हम इधर ही आके हम रुक जाते हैं. I must have come across so many amazing people and they were doing amazingly well. खाली persistent नहीं थे, they left. Now हम अगर एग्जांपल ले, आज के हमारे क्रिकेट का एग्जांपल अगर हम ले लें, Vinod Kamli were more good batsmen than Sachin Tendulkar, but because Sachin Tendulkar was persistent, he kept on practicing, he kept on doing it, then he became Sachin Tendulkar. So crux of the story is that choice lies with whom? With us. That choice is not with anybody else, only with us. Okay. So did I miss number 4? Okay. So let me just recap it.
सो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि नंबर वन इज बिलीव रखना है, फेथ, एंड यू नीड टू ओपन योर हार्ट, दैट इज पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू इज स्माइल, and you need to be happy with what you have right now. Point number three is thankfulness. Thankfulness is what bring you, छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ में. खाना खाने को मिल गया, वो ही ग्रेटफुलनेस है. हमें एक छत मिल गया रहने के लिए, वो ही ग्रेटफुलनेस है. ठंडी में हमें हीटर मिल गया, वो ही ग्रेटफुलनेस है. इतनी गर्मी में, तपती गर्मी में हमें एसी मिल गया, उतना ही. ये तो सारे थिंग्स हो गए, मगर थिंग्स की परे भी बहुत सारी चीजें हैं. तो जब आप देखोगे तो मतलब इवन दो अन्न, अन्न जो आपकी प्लेट में आ रहा है, हाउ इज इट कमिंग. मतलब एक फार्मर ने डिसाइड करा कि मैं एक सीड डालूंगा और मैं उसको ग्रो करूंगा, नर्चर करूंगा. उसने इतनी मेहनत करी, और मेहनत करते हुए वो कहाँ कहाँ से वो मंडी में गया, मंडी से जाते हुए आपकी ग्रोसरी स्टोर में आया, ग्रोसरी स्टोर से वो आपके घर पे आया, और आपने उसको बनाया. एंड वो ग्रेन के अंदर, दैट ग्रेन itself is that दिव्य रोशनी. So that divine energy which is flowing in you is flowing in that green also. Because जब आप वो खा रहे हो तो आपको पोषण मिल रहा है, आपको एनर्जी मिल रही है. सो अन्न ब्रह्मन, सो इमेजिन द ग्रेस. मगर हम उसको बिल्कुल ऐसे लाइटली लेते हैं. हम ऐसे खा रहे हैं और फोन पे भी बात कर रहे हैं, and then we are doing all the things. So imagine how ignorant we are doing so many things. Okay. So point number three is thankfulness. Point number four is gratefulness. Okay. Now coming to point number five is persistent. Bacha, persistence. You have to be persistent in whatever sadhana you're doing. अगर आप persistent नहीं हो तो वो कहीं ना कहीं वो ग्रेस आते आते भी रुक जाएगा. Okay. Now point number seven is silence. Silence is the ultimate magic that you can experience in your lifetime. मगर साइलेंस को क्या हम इमिजिएटली एक्सेस कर सकते? इट टेक्स टाइम, इट टेक्स प्रैक्टिस, बट इट हैपेंस. सो जब आप साइलेंस टच करोगे, then point number seven is become the blank paper for God's autograph. डिवाइन एनर्जी अगर आप चाहते हो आपके, मतलब आपके लाइफ में, यू हैव टू बिकम द ब्लैंक पेपर. मतलब कि हमारी इतनी कंडीशनिंग, हमारा इतना कुरुक्षेत्र जो चल रहा है अपने माइंड में, इतना सारा चीजें जो हम एक्सपीरियंस करें, ये सब चीजों को खाली करना है. हमें नथिंगनेस में जाना है, शून्यता में जाना है. या जैसे बुद्धिस्ट से शून्यता, और वेदांतिस कॉल इट पूर्णता. तो चॉइस हमारे ऊपर है अल्टीमेटली. पूर्णता बोलो, शून्यता बोलो, इट इज वन एंड द सेम. नथिंगनेस में जाना है. बट नथिंगनेस में कैन यू गो इंस्टेंटली? नो. बट देन देर इज अ स्टेप दैट यू कैन डू. ओके. सो ये तो हो गए हमारे 7 स्टेप. नाउ हाउ डू यू मेक इट हैपन? ओके. और ये सारे 7 स्टेप्स फॉलो करके अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग, मतलब यू हैव टू गो आउट ऑफ इट. सो आपको अपना फोकस जो है, आपको लेजर फोकस रखना है. लेजर फोकस करते एवरी टाइम यू हैव टू चूज कि नहीं, आई एम गोइंग टू मेक इट हैपन, आई एम गोइंग टू डू इट. चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बट यू हैव टू स्टिक टू इट. जब आप में उतनी दृढ़ता, उतनी शक्ति, उतना संकल्प शक्ति, उतना ज्यादा आप में वो आ जाएगा डिसीजन पावर, तो आप ऑटोमेटिकली देन यू विल बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी. मतलब लेजर फोकस, आपका पावर ऑफ चॉइस, अगेन यू आर चूजिंग दिस. आप एनर्जी दे रहे हो, कॉन्स्टेंट यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, यू आर गिविंग टाइम, आप परसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन है, एंड ऑटोमेटिकली कोई भी ट्रबल आ जाए, मगर आप बोलो नहीं, आई एम गोइंग टू डू माई साधना, आई एम गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स इट. और आप जब कंटिन्यूसली करोगे, ट्रस्ट मी, थिंग्स विल ऑटोमेटिकली विल हैपन, और वो ऑटोमेटिकली आपके लिए होने लगेंगे. ओके. सो नाउ वी कम ऑन टू
हाउ डू आई मेक इट हैपन, सो व्हाट आर द स्टेप्स, एवरी डे मुझे क्या स्टेप्स लेने, ओके. So probably you can take a screenshot also of this slide so that it will help you. So what to do every day? तो रोज सुबह जब आप उठ रहे हो, यू नीड टू गेट अप. जैसे आप उठते हो 30 मिनट्स के अंदर अंदर, सुबह जब उठते हो अपने बाथरूम वाथरूम जाते हो, उसके बाद में ओपन जेस्चर करो, शेकअप करो, एंड आप ब्रेथ वर्क कर सकते हो. आप अपनी सारी हैवी एनर्जी को रिलीज करो, जो हम करेंगे अभी, एक छोटा प्रैक्टिस में करवाऊंगी आप लोग के साथ. और अपने आप को बैलेंस करो, और रोज सुबह ओम चैंट करो, नहीं तो ओम नमः शिवाय. विच एवर यू वॉन्ट टू डू इट विथ पूरा डेडिकेशन एंड डिवोशन के साथ. ओके. नाउ इन द इवनिंग अगेन शेकअप करो, अपनी बॉडी को टैप करो सो दैट आपकी एनर्जी सर्कुलेट हो. आपका ब्रेथ वर्क करो, अपने वापस से खाली करो पूरे दिन का स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर, और कहो आई एम ओपन टू रिसीव गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन. नहीं तो अपना प्रेयर करो, जो हम आगे प्रेयर करने वाले. ओके. अपना रोज मंत्र करो. अगर मंत्र नहीं करना है तो आप ओम चैंट कर सकते हो. और आप अपने सारे प्लेयर्स में डीप लेवल में आपकी मंत्र की एनर्जी अपने एवरी सेल में जाते हुए, अंतःकरण में, बिल्कुल टोटल साइलेंस में, उधर तक अंदर तक आप इतने लेवल पे, इतने डीप लेवल पे करना है. ओके. एंड देन आपको खाना जो है वो 7 o'clock के पहले कंप्लीट कर लेना है. और लाइट खाना खाना है, लाइट खाओगे तो ही आपको ज्यादा हेल्प करेगा. ओके. और फुल डे हर ब्रेथ के साथ में, जस्ट वेन एवर यू फील डिस्टर्ब, आपको ये बोलना है आई एम कनेक्टेड टू द डिवाइन एनर्जी. अपने अंदर होल्ड करना है. ओके. सो नाउ डिवाइन गाइडेंस ब्लेसिंग लेनी कैसी है, व्हाट आर द स्टेप्स. ओके. तो अभी हम 2 प्रेयर करेंगे, और अभी हम सब करेंगे. ओके, वी विल डू दैट. बट पहले मैं आपको प्रेयर बता दूं, सो दैट यू टेक अ फोटो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप अपने आप भी कर सकते हो. और फिर हम अभी करेंगे, स्टेप टू स्टेप करेंगे. ओके. सो स्मॉल प्रेयर, आपको ये वाला प्रेयर करना है, तो वी विल डू इट. ओके. तो नाउ कीप वन हैंड ऑन योर चेस्ट, वन हैंड ऑन योर नेवर. ओके. और अगर आपका हैप्पी मूड नहीं है तो आपको फुल बॉडी को पहले टैपिंग करके गुड मूड में आ जाना है, तो वो हम स्किप कर रहे हैं, वो वाला स्टेप. ओके. सो वी आर स्टार्टिंग. ओके. वन हैंड ऑन योर चेस्ट, वन हैंड ऑन योर नेवल. इनहेल, I am aligned with the flow of the universal energy. Feel it, अंदर महसूस करते हुए, and exhale करते हुए, gratitude, gratitude and gratitude. Inhale, the cosmic energy flows through me effortlessly. Gratitude, gratitude and gratitude. I am stepping in the highest version of myself with ease. Gratitude, gratitude and gratitude. Feeling gratitude to the entire universe, from every cell, from everywhere. Gratitude, gratitude and gratitude. Okay. Now अभी हम थोड़ा सा बड़ा वाला करेंगे. थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा मीन्स मे बी 5 minutes or so, and then I'll show you the slide so that you can take a screenshot. Okay. Again, keep your hand on your chest, one hand on your navel. पहले हम पूरा खाली करेंगे. ओके. सो जैसे मैं बोल रही हूँ, जस्ट यू नीड टू जस्ट फ्लो विद इट. ओके. सो इनहेल, एंड पूरी तरह पूरे दिन का स्ट्रेस, empty yourself, release, release and release. Inhale, अच्छी गहरी श्वास, एंड पूरी तरह से पूरे दिन का प्रेशर रिलीज, रिलीज एंड रिलीज. अच्छी गहरी श्वास, एंड पूरा टेंशन, प्रेशर अंदर तक रिलीज, रिलीज एंड रिलीज.
आपका awareness on your mind. Inhale and release all overthinking thoughts. Release, and release. Inhale and पूरी over thoughts. Release and release. अपने माइंड को पूरी तरह क्लीन करते हुए, स्वच्छ करते हुए, अभी अवेयरनेस ऑन योर फेस. इनहेल एंड जस्ट रिलैक्स. कैसा भी खिंचाव तनाव ऑन योर फेस. रिलीज and release. Inhale and release all stress from your jaw. Release and release. Awareness on your shoulders. Inhale and release all baggages from your shoulder, old baggages, extra responsibility. पूरा खाली करते हुए. Release and release. Now awareness on your chest. कैसा भी hurt, pain, किसी ने भी को bad words बोले, पूरे हार्ट से रिलीज करते हुए. इनहेल एंड पूरी तरह से रिलीज and release. Awareness on your kidney and liver. कैसा भी एंगर, हर्ट, पूरी तरह से रिलीज and release. Awareness on your navel. Inhale and navel में कैसा भी चीज which you are not able to accept, तरह से release and release. अपने आप को पूरा खाली करते हैं. Now awareness on your legs. पूरी तरह से कैसा भी खिंचाव तनाव पूरी तरह से रिलीज and release. अभी अच्छी गहरी श्वास. बॉडी को खाली करते हुए एम्प्टी योरसेल्फ. ब्लैंक पेपर बनते हुए fully empty yourself. Release and release. Open your heart. हार्ट को ओपन करते हुए इनहेल अच्छी गहरी श्वास लेते हुए. I am a divine vessel of love and light. एक्सेल करते हुए gratitude and gratitude. वापस से I am a divine vessel of love and light. डीपर अंदर महसूस करते हुए feeling it deep inside you, deep अंदर तक. Inhale, I am a divine vessel of love and light. Gratitude and gratitude. Inhale, Spirit guides me in every step I take. Gratitude and gratitude. I am a channel for divine healing and transformation. Gratitude and gratitude. Inhale and feel करते हुए deep inside. I am a channel for divine healing and transformation. Gratitude and gratitude. Inhale. Each day I'm awakened to the beauty and miracles around me. Gratitude and gratitude.
Inhale deep, feeling it inside. Each day, I'm awakened to the beauty and miracles around me. Gratitude, gratitude, and gratitude. Inhale, I am blessed by the divine abundance and blessing. Gratitude, gratitude, and gratitude. Visualize all divine energy is blessing each inhalation. May you're inhaling the blessing. I am blessed by the divine abundance and blessing, feeling it deep inside. Gratitude, gratitude, and gratitude. I embrace the divine guidance that leads me to the highest good. Gratitude, gratitude, and gratitude. My connection with the divine brings me inner peace and joy. Gratitude, gratitude, and gratitude. I radiate divine love to all beings. Gratitude, gratitude, and gratitude. और डीप और अंदर जाते हुए बहुत ही डीप, feeling it in every cell. I radiate divine love to all beings. Gratitude, gratitude, and gratitude. Now you can open your eyes and you can just rub your hand and keep it on your eyes. So this prayer I'll just share with you. ये जो लंबा वाला है. Okay. So the long prayer which you can do, probably you can take a photo of it. And the major point in this is आपको गहरी श्वास लेनी है and you have to feel when you're saying it. The more you feel, the more deeper it will flow. And ultimately, the practice that you need to do, as I've said, every day in the night, you can do your mantra jap, you can do likhit jap, you can do your meditation, and then along with your breath work. And जब आप प्रभु का नाम बोलते जाओगे और फिर आप सोओगे और सुबह उठ के आप वापस से आप मेडिटेशन करोगे, so that becomes a very powerful sadhana that will help you to grow at an amazing speed. So ultimately, closing the talk with Kabir ka doha, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए. तो जब हम सुख में अपने दिव्य रोशनी से हम जुड़ते रहेंगे और उनका नाम हम बोलते रहेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. वो भी उनकी ग्रेस है और वो हमारे पास लेके आ रहे, और उनको समर्पण करते हुए we can solve and we can get connected to the divine energy every क्षण. So दुख भी अपने, सुख भी अपने, और वही दिव्य शक्ति है जो हमें अपग्रेड कराना चाह रही है, इसलिए हमारे पास आते हैं. और हम जब सॉल्व करते हैं तो उन्हीं की दिव्य रोशनी हमसे फ्लो करते हुए हम उसको सॉल्व करते हुए और आगे बढ़ते. तो सारी चीजें उन्हीं को समर्पण. सो दिस इज द टोटल हाउ डू यू रिसीव द डिवाइन गाइडेंस. सो ओवर टू अरुणिमा. Thank you so much, Anjali ma'am, for this beautiful, beautiful session. And we are really grateful that you shared your knowledge and wisdom coming straight from the heart. Thank you so much. And let's open the session to the participants. If they have any questions or they want to share something,
Participants, please go ahead. You can send your messages in the chat box, or you can simply unmute yourself and speak up. Preeti saying lovely session. Thank you, Preeti ji, so much. Thanks so much. And Mridula ji has raised the hand. Please go ahead, ma'am. Yeah, thank you so much, Anjali ma'am. First of all, it was a wonderful session and a lot of insight was developed in us. However, one quick question and a small one, that you have given a point to become a blank paper for God's autograph, isn't it? So, how to develop this thing? so see, when we are born, we are like a blank slate, and then we come, and then because of the environment, there's so much of conditioning patterns, so much of fear, so much of things that we acquire the journey. Okay, but when you start your sadhana, so sadhana is to sadhana, when you start and when you start doing it, when you do your mantra jap, when you do your meditation, so meditation helps you a lot, but not everybody is a person who can sit for meditation. So you need to understand yourself कि what kind of a person I am. Am I मैं बहुत चंचल हूँ और मैं एक जगह नहीं बैठ सकती हूँ? That means meditation is not the way for me. That means I need to explore maybe EFT. I need to explore other methods where I can just bring myself balance. तो आप जर्नलिंग से स्टार्ट कर सकते हो. You need to understand. सबसे पहले फर्स्ट थिंग व्हाट आई एडवाइज टू एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंड आपकी कौन सी पैटर्न्स चल रहे हैं, कौन सी रॉन्ग फॉल्टी पैटर्न्स आ गए हैं. तो जब आप फॉल्टी पैटर्न्स को पहचानोगे देन ओनली यू कैन अनडू इट. टिल द टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड कौन से फॉल्टी पैटर्न्स है विच इज स्टॉपिंग मी टू मूव फॉरवर्ड, तो how will you correct it, right? So it's like an audit. It's like you're auditing your entire thing, and then that is how you can move forward. So that means we can see our darker sides or limitations through meditation or any other practice which suits us most. Many practices are there. You still mirror work करना पड़ेगा, inner child healing करनी पड़ेगी. There are many things that we'll have to work on. So first you need to understand on what do you really get triggered. So are you in a state where I do get triggered? Is it that I need healing, or is it that I need to? So the simple of all is what I advise to each and everybody is please chant Om. And when you chant Om, your majority of your stuff gets sorted. You have, because I've been teaching Om since many years, and I do a survey also. Okay, first day jab anybody registers, so what is the state that they are experiencing right now? So many people say I'm going through stress, tension, pressure, and so on and so forth. Okay, and after the 21st day, every class, since so many years I've been teaching, everybody says, I'm free from tension, I'm free from stress, I'm free from anxiety, I am free from depression, I'm free from my disease. I was not well and I'm fine now. So imagine Om does that magic, and Om is in depth. So start, the simplest thing is chant Om, and then gradually understand, analyze कहाँ पे क्या rectification चाहिए, and then work on it. Right. If you don't mind, would you chant one time Om for us, like how you do it? See, now many schools teach it in many different methods, right? So ultimately, many people chant it Om, okay? But ultimately, when you will keep on chanting Om, automatically it will go to Om, okay? So in Sanskrit, A plus O जब जुड़ जाता है तो वो संधि हो जाती है, तो it becomes O. तो how do you chant is you inhale, exhale while you chant Om, and the makar को आपको थोड़ा लंबा करना है. So the correct method in the first, because I teach Om in 6 levels. So the first one, anybody who's starting Om, आपको basically क्या करना है? आपने inhale किया and exhale के साथ Om बोला,
और ओम में मकार को थोड़ा लंबा किया है, एंड देन देर इज अ गैप बिटवीन बिफोर द अनदर ब्रेथ. So you need to start observing that gap only. That's it. And you need to keep on practicing that. Okay, so I'll chant Om and I'll show you. So inhale. Om. So the count that I was showing you was a gap. Now my gap is higher. Why? Because I've been practicing since such a long time. मगर शुरू में जब आप गैप देखोगे, वो खाली एक डॉट जैसा लगे, मतलब इट मे बी जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. इट्स ओके, वॉट एवर इट इज, यू हैव टू लव योर ओन ब्रेथ. आपकी ओन ब्रेथ का जो ड्यूरेशन है, चाहे शैलो है या लंबा है, अपने ब्रेथ को देख के वैसे ओम करना है और मकार को लंबा करना है, बस. दैट इज इट. एंड ऑब्जर्व द गैप. ओके, Thank you so much for that. वेलकम. वेलकम. Yeah. थैंक यू. Sunita is saying lovely and wonderful. Arunima is acha, okay. Thank you, ma'am. Participants, if anyone else has any question or they want to share something, please go ahead. We Any do have some questions? lovely appreciation in the chat box, ma'am. You have already read. Okay, thank you so much. It was lovely speaking on your platform. It was beautiful. Yeah, Deepa, you want to speak? Yeah, I will just to share because I have been like associated with Anjali for a long time. I think so it's been more than close to 1 year maybe. So really like I have been following many different things. But the thing when I started with breath work and Om chanting, even from really it's very simple and like as Didi told, like when like I started doing again persistency. So with that I started seeing lot of things changing in my life at body level, at mind level, for everything. So I'm really grateful. Yeah, thanks a lot. Like each time, like I feel like it's a habit I need to build every day. So thanks a lot. Thank you. Thanks so much, Deepa. Thanks for your kind words. So Mridula is saying, thanks so much. Please come again with an exclusive home session. Yeah, anytime. Would love to. I love chanting Om so much that even in the middle of the night, 2 baje bhi aap uthaoge na, I'll be all geared up. I'll be fully charged up. Ki let's chant Om. That beautiful it is. Dr. Bijlani, sir, I request you to share your thoughts, please, if possible for you right now. Sir, are you there? Yeah. Yes, yes, very much there. Actually, I must say that when you started introducing Anjali, I didn't expect the type of talk that she gave. With her specialization in NLP and hypnosis, I thought probably she'll stick to those techniques. Nothing wrong with that, but those are things which have come to us from the West. Sometimes after getting a little into ancient Indian wisdom, but very often packaged in a way that they look like rather infantile steps towards the rediscovery and reintroduction of ancient Indian wisdom. Why I'm saying infantile steps is because ancient Indian wisdom actually went much deeper and broader than these techniques which the West has now started coming up with. But then I was very pleasantly surprised to find that Anjali is a deeply spiritual person. And in fact, she was rooted more in the Indian tradition than in these techniques that she has learned from the Western countries. So that was a very pleasant surprise. And her mission of reaching 10,000 people by 2030 is indeed very commendable.
and wish her all the good luck for not just achieving that target, but exceeding it. And Thank everything is possible. As Sri Aurobindo has said, everything can be done if the God touch is there. And she's such a believer in God. I'm sure that touch will be there, and she will not only meet the target, probably exceed it much beyond her expectations. When she started with Arjun as the example of why actually we need divine guidance, again, it was an excellent example because Arjun was not an ordinary person. He was a highly accomplished person. He was a very intelligent person. He knew all the rules and mores of his times. He knew what are the right things to do for a Kshatriya. He knew all this. But a person with all these accomplishments was still suddenly finding that he was confused. He didn't know what to do, whether to fight or not to fight. So he was facing a moral crisis in spite of being such an accomplished person. So if such a person can be in such a dilemma and can seek divine guidance, then why not ordinary mortals like us? So that is why we need it, which means we have to acknowledge our limitations, no matter how much we already know, the way Arjun did. And but only there's one difference is that when Arjun felt that he needed divine guidance, Sri Krishna was in front of him in flesh and blood. We don't have that privilege. So we have to do it another way. But then it's not impossible because the divine is everywhere, God is everywhere, and therefore it is only a question of establishing the connection. Then, when she went on to the details, it was again amazing how much reflection I'm sure has gone into what she spoke, because she had everything very neatly packaged in clusters of 7. And in a way, one might say that she started with the melody. That is, why is it so difficult to establish the connection with the divine? And she had 7 points. And if I may summarize it, that reduce those 7 points to something shorter, I would say basically it was 2 things. One was a cluttered mind, which means we need silence to be able to establish the connection. And secondly, inadequate faith, which means we are trying to somehow, we believe and we don't believe, we have faith, we don't have faith, which means that we are struggling between and sort of trying to have one leg on both sides, depending entirely on our own efforts, which are mental in nature, and also trying to say, well, divine bhi try kar lete, maybe that will help if this is not helping. Now, that type of a conditional approach does not help, which means we have to have total faith, total surrender, and achieve mental silence. These are the 2 basic things which are obstructing. So if that is so we know the disease. So next we went on to the treatment. And again, basically the treatment was taking care of these 2 basic things in different ways, because the same thing doesn't suit everybody. How to make the mind uncluttered, relatively silent, and how to sort of deepen our faith and make our surrender total. And but then that still remains abstract. Then she went on in detail to exactly what we can do, the practice. And once again, if I sum up the practice that she talked about, it basically boils down to love, extending our love all around us and in different ways, which means that treating ourselves as part of a larger collective, establishing a connection through relationships, and seeking the love, light, and the power of the divine to guide us, engage with the world without those complications. And that needs a great deal of humility, realizing our limitations, as well as the glory of the Lord, and also immense gratitude. So basically, these were the things, love, humility, and gratitude, that enter every practice that she talked about. While everything was so neatly packaged, I was very happy to see that also she did not insist on a particular technique, insist on a particular way of meditating. She even said that if you can't meditate, you can try other methods, which means that individual variation, which makes one person like one thing and another person like another thing. One thing may work with one and not with another. That was also taken care of. So overall, I think it was a wonderful session, and I was happy to see that
quite a few watched it live, and I'm sure many more will watch the recording when it is uploaded. So thank you, Anjali. Thanks a lot. And maybe sometimes we can have you again purely for a session on guided meditation, as was one of the persons said that you can talk more about Om chanting and so on. So maybe we can have you again for a session of that type, or anything else that I'm sure you have a lot up your sleeves, which you can share with the audience. Thank you once again, Anjali. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Before we close today's session, I would like to inform that the recording of today's session and all Yes Talks are published on our YouTube channel, Yes Spirituality. This is how it is spelled, please note. And I have also dropped the link to the channel in the chat box. You can visit the channel and explore extensive content on yoga, education, spirituality, and related subjects like psychology and wellness. Anjali ma'am, thank you so much. Once again, we are really grateful for your presence. And participants, we thank you as well for being with us today. We'll close today's session now with a moment of peaceful silence. Namaste.